देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1 ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ 18 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କହିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ନିଆଯିବ। ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁଳପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। କାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ନମ୍ବର 2 କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ। କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ 44ତମ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଟିକସ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ନେସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ଜିଏସ୍ଟିକୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ 12% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗୁଥିବା କେତେକ ଔଷଧ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍, ଟୋସିଲିଜୁମାବ, ହେପାରିନ୍ ଉପରେ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 12% ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍, ମେଡିକାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମାସ୍କ ଓ ହେଲମେଟ୍, ବାଇପାପ୍ ମେସିନ୍, ଏଚ୍ଏଫ୍ଏନ୍ସି ମେସିନ୍, ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ଏବେ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 3 ଯୁକ୍ତ 2 ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବାଟ ପାଉନି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ବି କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ସିବିଏସ୍ଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ସିବିଏସ୍ଇ କମିଟିକୁ ଭରସା କରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଧାର କରିବେ ଏମାନେ ତାହାର ପାଖାପାଖି କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 26ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଜଭବନ ଘେରାଉ କରିବେ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଜୁନ୍ 26ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଏହାକୁ ଘେରାଉ କରିବେ। କାଲି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଷର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଭାବେ ଜୁନ୍ 26ରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋର୍ଚ୍ଚା କହିଛି। ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ କାଲି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହା ସହିତ ମୌସୁମୀ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୌସୁମୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଆବୃତ କରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଜୁନ୍ 18ରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଆଇଏମ୍ଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଏମ୍ଏ। ଜୁନ୍ 18ରେ ସେଭ୍ ଦ ସେଭିୟର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆଇଏମ୍ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆଇଏମ୍ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ବ୍ୟାଚ୍, ମାସ୍କ, ରିବନ୍, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଇଏମ୍ଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଜିଓ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ଆସାମ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି
होइतिबा हिंसा को विरोध करी एथिरे अंकुश लगेइबा पई आईएमए विक्षोभ प्रदर्शन करने निष्पत्ति नेइछि। नंबर 7 हज यात्रा उपरे कटकणा लगेला साउदी अरब। हज यात्रा पई केवल 60,000 स्थानीय लोकों को मिलिला अनुमति। एने काली साउदी अरब पक्षरु कह जाइछि महामारी पई चलित वर्ष हज यात्रा पई केवल 60,000 स्थानीय लोकों को अनुमति मिलिबो बोली साउदी प्रेस एजेंसी हज एवं उमरा मंत्रालय बयान जारी करिछि। मंत्रालय पक्षरु कह जाइछि कि चलित वर्ष हज यात्रा जुलाई मास मध्यभागରୁ आरंभ हेबो। एथिरे 18 रु 65 वर्षर लोक भाग नै परिबे। हज यात्रा पई इच्छुक स्थानीय व्यक्ति टीका नेबा बाध्यतामूलक बोली कह जाइछि। साउदी अरब सरकार हज यात्रीଙ୍କ स्वास्थ्य सुरक्षा और देशर सुरक्षा बाबदरे विचार करी एभଳି निष्पत्ति नेइछन्ति। उल्लेखयोग्य प्रतिवर्ष हज यात्रा रे पाखापाखि 20 लाख लोकंकर समागम देखिबाकू मिलिथाए किंतु महामारी पई एथिरे किछि कटकणा लगा जाइछि। नंबर 8 भुवनेश्वर समेत 4टी सहर में मुतयन हेब कोस्टगार्डर लढ़ुआ हेलिकप्टर। राष्ट्रत उद्योग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल पक्षर निर्मित एडवांस लाइट हेलिकप्टर अर्थात एएलएच मार्क 3 भारतीय तटरक्षी बाहिनी अर्थात कोस्टगार्ड रे सामिल होइछि। काली प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर अनुष्ठित एक वर्चुअल कार्यक्रम में एसबू हेलिकप्टर गुड़ी को सामिल करा जाइथिला। एसबू हेलिकप्टर गुड़ी को भुवनेश्वर पोरबंदर चेन्नई और कोची रे रखाजिबो। एसबू राज्य में उपकूल निरापत्ता उपरे सरकार सर्वाधिक गुरुत्व देउछन्ति। एछडा प्राकृतिक विपर्यय जरूरीकालीन आवश्यकता बेले एगुड़िक सहायक होई परिबो। हाल पक्षरु कह जाइछि जे एही हेलिकप्टर गुड़िकरे मेसिन गन सर्वेलांस राडार सर्च लाइट लाउड होमर आदि उपकरण रहिछि। यह उभय सामरिक पहरा और सहायतामूलक कार्य करि परिबो। नंबर 9 धीरे धीरे अनलक आम पई भल कहिले स्वास्थ्य निर्देशक। आक्रांतों संख्या कमुछि एथरक धीरे धीरे अनलक आम पई भल बोली कहिसंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। से कहिसंती अन्य राज्य माने एही पंथ अवलंबन करिसंती। किछि कटकणा कोहड़ हेबो किछि कटकणा पूर्वपरि बलवत्तर रहिबो। अनलक पई सरकार सबु दिगरु विचार विमर्श करी निष्पत्ति नेउछंती। समस्त जिल्ला गुडी को 3टी जोन रे विभक्त करा जाई आमे स्थिति उपरे नजर रखिछु। जून 17 तारिख परे कोन हेबो सेनी खूब शीघ्र बैठक में निष्पत्ति नियाजिबो बोली कहिसंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। कटक अनुगुल खोर्धा जाजपुर भड़ी किछि जिल्ला रे एबे संक्रमण हार कमुछि। मृत्यु संख्या बढ़िबार 2टी कारण रहिछि पूर्व केस लोड एवं वर्तमान किछि लोक गुरुतर थिबा जोगु मृत्यु संख्या बढ़ुछि बोली कहिसंती विजय महापात्र। नंबर 10 एम्स को आसीबो पीटी सीटी स्कैन लाभ पाइबे कर्कट रोगी। भुवनेश्वर एम्स को आसीबो पीटी सीटी स्कैन। कोविड द्वितीय लहर जोगु एहार स्थापन कार्यक्रम विलंब होइछि। 2 मास मध्य डाक्तरखाना रे बेसमेंट अंचल रे यह स्थापित हेबो बोली कहिसंती एम्स अधीक्षक डॉक्टर सच्चिदानंद महांती। वर्तमान सुधा राज्यर कौनसी सरकारी डाक्तरखाना रे एही मेसिन नाही। कर्कट अन्य जटिल अस्त्रोपचार क्षेत्र में यह सहायक होई परिबो बोली डाक्तरखाना पक्षरु कह जाइछि। एही पीटी सीटी स्कैन जरिए कर्कट रोग चिन्हट सह क्यों स्टेज रे रही सर्जरी केमो किंबा रेडियोथेरापी कौन आवश्यक यार सूचना पाइपारे। कर्कट रोगी थरे चिकित्सित होई सुस्थ हेबा परे 6 मास किंबा 1 वर्ष व्यवधान रे मध्य एही मेसिन जरिए रोग स्थिति संपर्क में जानी परिबे। नंबर 11 इतिहास रचिला तैल दर पेट्रोल शतक पर डीजेल मारिला शतक। सारा देश में तैल दर वृद्धि को नहीं विरोध प्रदर्शन चली बेले काली पुणी थे तैल कंपनी माने डीजेल और पेट्रोल दर वृद्धि करिसंती। काली पेट्रोल लिटर पिछा 27 पैसा और डीजेल 23 पैसा वृद्धि कर जाइछि। एभली वृद्धि पर राजस्थान रे डीजेल लिटर पिछा 100 टंका पहुंची। मुंबई रे पेट्रोल 102 टंका 30 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 94 टंका 39 पैसा रही। जयपुर रे पेट्रोल 102 टंका 73 पैसा और डीजेल 95 टंका 92 पैसा रही। भोपाल पेट्रोल लिटर पिछा सर्वाधिक 104 टंका 29 पैसा बिक्री होउथिबा बेले डीजेल 95 टंका 60 पैसा बिक्री होउछि। राजस्थान रो श्रीगंगानगर जिल्ला रे पेट्रोल 107 टंका बिक्री होउथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 100 टंका 5 पैसा बिक्री होइछि। अन्यपटे डीजेल और पेट्रोल रो एभली अहेतुक दर वृद्धि को विरोध करी सारा देश में कांग्रेस पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि। नंबर 12 एमएसएमई संस्था को सेप्टेम्बर सुधा दियाजिबो 1600 कोटी टंका ऋण। चलित वर्ष सेप्टेम्बर सुधा राज्य में थिबा अणु क्षुद्र मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई को 1600 कोटी टंकार ऋण दियाजिबो। जिला और आंचलिक शिक्षा केन्द्रर महाप्रबंधक मानक समीक्षा बैठक में यह सूचना दी जाइछि। बैठक में एमएसएमई मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र कहिसंती जे बिजु एक्सप्रेस वे को 4 थाकिया करने को निष्पत्ति निया जाइथिबारु यार पार्श्वर शिल्पपुंज स्थापन करिवार सुजोग सृष्टि होइछि। एही स्थान गुड़िकरे विद्युत संजोग प्रदान करिबा लागि कार्य आरंभ होइछि। कड़ाहांडी रे राइस ब्रांड शिल्प को प्रोत्साहित करने को से आह्वान दैछंती। नंबर 13
ओडिशा पुलिस रे 477 सब इन्स्पेक्टर पदवी नियुक्ति पाई परिबे किन्नर। राज्य रे किन्नर माने भी पुलिस रे भर्ती होई परिबे। ओडिशा पुलिस पक्षरु सब इन्स्पेक्टर और कनेस्टेबल पदवी पाई बाहरी थिबा सद्य विज्ञप्ति रे एही कथा उल्लेख रहिछि। 477 टी सब इन्स्पेक्टर पदवी पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सेही बडी 244 टी कनेस्टेबल पदवी पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एथिपई जून 22 तारिख रो आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। आवेदन करिवार शेष तारिख हेउछि जुलाई 15। इच्छुक योग्य प्रार्थी माने एथिपई ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। सब इन्स्पेक्टर पदवी पाई जो माने आवेदन करिवे सेमानक बयस 21 वर्ष रु कम होई नथिबो कि 1/1/2021 सुधा 25 वर्ष रु अधिक होई नथिबो। तेबे एससी एसटी एससी बीसी और महिला प्रार्थी मानक पई बयस 5 वर्ष कोहड़ रहिछि। सेही बडी कनेस्टेबल पदवी पई जो माने आवेदन करिवे सेमानक बयस 18 वर्ष रु कम होई नथिबो तथा 1/1/2021 सुधा 23 वर्ष रु अधिक होई नथिबो। ए संपर्क रे सूचना दी डीजीपी अभय कहिसंती सब इन्स्पेक्टर पदवी पई सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता स्नातक पास रखा जाइछि। चलित वर्ष परीक्षा ढांचा रे परिवर्तन करा जाइछि। गोटिए लिखित परीक्षा हेबा सह सेथिरे मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहिबो। एथिसह प्रार्थी माननकु शारीरिक दक्षता परीक्षा रे भी कृतकार्य हेबाकू पड़िबो। सेही बडी कनेस्टेबल पदवी पई इच्छुक थिबा प्रार्थीक पई सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता युक्त 2 पास रखा जाइथिबा बेले सेमाने राज्य सरकारक द्वारा स्वीकृति प्राप्त कोनोसी अनुष्ठान रु कंप्यूटर एप्लिकेशन रे डिप्लोमा करिथिबा आवश्यक। एहा बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा रे भी सेमानकु कृतकार्य हेबाकू पड़िबो। नंबर 14 आईआईटी प्रोफेसर उद्भावन कले बोमा निरोधी हेलमेट। आईआईटी रुर्की रो जणे प्रोफेसर भारतीय सेना पई एपरि एक हेलमेट तयारी करिसंती जहाकी बोमा विस्फोरण बेले सैनिक मानक मुंडको सुरक्षा देई परिबो। तांकर ए उद्भावन केवल भारत नुहे समग्र विश्वर सामरिक इंजीनियरिंग क्षेत्र रे एक विरल सफलता बोली कह जाउछि। एही अत्याधुनिक मिलिटारी हेलमेट रो उद्भावन करिसंती प्रोफेसर शैलेश गनपुले। से आईआईटी रुर्की रो मेकानिकल एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग रो जणे प्रोफेसर। एपर्यंत सैनिक माने पिंधुतिबा हेलमेट गुड़िक सेमानकु केवल गुड़ी दाउरु रक्षा करि पारुथिला किंतु यह एक आईडी ब्लास्ट बा बोमा विस्फोरण हेले मुंडको सुरक्षा देई पारु नथिला। किंतु एही नुआ प्रकारर हेलमेट विस्फोरण कबळरू मध्ये मुंडको सुरक्षा देई परिबो। नंबर 15 ओडिशार 3टी जिल्ला रे हेबो सेरो सर्वे। कोविड संक्रमण केते मात्रा रे व्यापीछि एवं केते लोकंक देहरे एंटीबॉडी सृष्टि होईछि ताहा जानिबा पई सेरो सर्वे करा जिवो। ओडिशार 3टी जिल्ला सह देशर मोट 70टी जिल्ला रे सेरो सर्वे पई योजना प्रस्तुत होईछि। चतुर्थ पर्याय सेरो सर्वे राज्य रे आरंभ हेबाकू जाउछि। गंजाम रायगढ़ और कोरापुट जिल्ला रे सेरो सर्वे करा जिवो बोली आरएमआरसी निर्देशिका संघमित्रपति सूचना देइछंती। आरएमआरसी निर्देशिका संघमित्रपति कहिसंती जे चतुर्थ पर्याय सेरो सर्वे रे 6 वर्ष रु अधिक वयस्क पिलामानकु शामिल करा जिवो। एही सर्वे देशर 70टी जिल्ला रे हेबो। एथिरे ओडिशार 3टी जिल्ला रहिछि। आसंता 16 किंबा 17 तारिख रु आरंभ हेबो नेशनल सेरो सर्वे। आसंता 22 तारिख रु 24 तारिख भितर राज्य रे सर्वे सारिबाकू टार्गेट रहिछि। नंबर 16 सिने प्रयोजिका आयशा सुल्तानक नाम रे देशद्रोह मामला। लक्षद्वीपर मलयालम सिनेमा प्रयोजिका आयशा सुल्तानक विरोध में पुलिस देशद्रोह मामला रुजु करिछि। बीजेपी लक्षद्वीप यूनिट सभापति अब्दुल खदेर एक टेलीविजन वितर्क में भाग नहीं देइथिबा मंतव्य को आधार करी ए मामला रुजु होईछि। लक्षद्वीप रे चलिथिबा विवादीय संस्कार उपरे मीडिया वन टीवी रे एक वितर्क होइथिला। एथिरे सुल्तान जोग देई कहिथिले लक्षद्वीप रे कोविड-19 रो प्रसार पई केंद्र जैव अस्त्र प्रयोग करिछि। तेणु बीजेपी राज्य मुख्य काबार्ती पुलिस रे अभियोग करिसंती जे सुल्तान कोविड-19 नै मिछ खबर प्रसारित करुछंती। केंद्र सरकार तांको विरोध में देशद्रोह मामला रुजु करिथिले। तेबे सरकारक ए निष्पत्ति को विरोध करी लक्षद्वीप रे एकाधिक बीजेपी नेता इस्तीफा देइछंती। पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा परे अब्दुल हमीदक नेतृत्व में अन्य बीजेपी नेता माने तांको सपक्ष रे बाहरिथिले। आयशंको मिथ्या एवं अन्य भावे फसा जाउछि बोली सेमाने अभियोग करी इस्तीफा देइछंती। नंबर 17 पंजाब रे बीएसपी सह मेंट घोषणा कले अकाड़ी दलर बादल। आगामी 2022 रे हेबाकु थिबा पंजाब विधानसभा निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिबा निमंते मायावती बहुजन बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी सह मेंट करिबा लागि ग्रहण करिथिबा निष्पत्ति कथा काली शिरोमणि अकाड़ी दल अर्थात एसडी घोषणा करिछि। सूचनायोग्य केंद्र सरकारक विवादीय कृषि आईन को विरोध करी गत वर्ष अकाड़ी दल बीजेपी सह करिथिबा मेंटरू ओहरी आसीथिला। बीएसपी सह मेंट करिबा लागि एसडी रो कोर कमिटी बैठक रे स्थिर करा जायथिला। 27 वर्ष पर पुणी अकाड़ी दल बहुजन समाज पार्टी एकत्र होइछंती। 1996 लोकसभा निर्वाचन रे उभय दलर मेंट पंजाबर 13टी लोकसभा आसनरू 11टी अख्तियार करिथिला। नंबर 18 कटक सहर में वयस्कों टीकाकरण पर घरे पहुंचब गाड़ी।
कटक सहर में वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण पर विशेष व्यवस्था कर घर टीकाकरण केन्द्र को आसवाक अक्षम थी लोकों सुविधार टीका दिज्व वयस्कों को टीका व्यवस्था नहीं काली सूचना देते सीएमसी कमिश्नर अनन्या दास। फोन नंबर 9777067297 रे कॉल कले घरे पहुँचब गाड़ी पहुँची वयस्कों को टीका केन्द्र में टीका देवा परे पुणी घरे आनी छाड़िब पाठ पढ़ा बा चाकरी पाई विदेश जावाक थिबा व्यक्ति सुविधा कर टीका सर्टिफिकेट दरकार थिले गोपालपुर कल्याण मंडप आसतु। नंबर 19 भारतीय स्टेट बैंक आनिला कवच पर्सनल लोन योजना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कवच पर्सनल लोन नाम एक ऋण योजना आनी योजना रे कम सुधरे कोविड संक्रमित ऋण नहीं चिकित्सित हो पारे। बैंकर सूचना मुताबक यह स्कीम रे जड़े 5 लाख टंका पर्यंत ऋण नहीं पार। बैंक तरफ स्पष्ट कर कि यह ऋण पर ऋणधारक बैंक को किसी भी बंधक देवाक पड़ब ना। यह योजना रे सर्वाधिक 5 लाख सर्वनिम्न 25,000 टंका पर्यंत ऋण मिल और ताहाकू ऋणधारक 5 वर्ष पर्यंत सुझिबार व्यवस्था रही। ऋण उपर ऋणधारकों को वार्षिक 8.5% हार में सुध देवाक पड़ो। अन्यपटे लोन उपर मोरटोरियम अवधि रही। ऋण योजनार लाभ दरम प्राप्त पेंशनभोगी और साधारण लोक नहीं पारे। ऋण पर आपण ऑनलाइन आवेदन करें। नंबर 20 सेप्टेम्बर पूर्व समस्त को द्वितीय डोज मंगलवार ठारू स्वतंत्र अभियान। राजधानी रे कोविड संक्रमण धीरे धीरे नियंत्रण को आसुथिबा बेले बीएमसी पक्षरु टीकाकरण को जोरदार कर जाइछि। चलित मास शेष सुधा 45 वर्ष ऊर्ध्व लोकंकर 2 डोज टीकाकरण शेष हेबाकु थिबा बेले जुलाई 15 सुधा 18 रु 44 वर्गर समस्त को प्रथम डोज टीका दियाजिबो। सेप्टेम्बर पहिला पूर्व राजधानी रे 18 वर्ष अधिक समस्त को द्वितीय डोज टीका दियाजिबो बोली बीएमसी पक्षरु कहुଯାଇଛି। बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह कहिसेंति जे जून 15 रु टीकाकरण पर स्वतंत्र अभियान आरंभ हेबो। कम दिन में अधिक लोकों को टीका दियाजिबो। एथिपई उभय केन्द्र में सकाळ बेला केवल प्रथम डोज एवं अपराह्न रे केवल द्वितीय डोज दियाजिबो। नंबर 21 अमेरिका रे कोवैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण करिबो भारत बायोटेक। भारतर स्वदेशी ज्ञानकौशल में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन को जरूरीकालीन अनुमति देवाकू अमेरिकार औषध नियामक अर्थात यूएस एफडीए मन करिबा परे भी आशा छाड़ीनी एही टीका निर्माता भारत बायोटेक। कंपनी पक्षरु काली कहुଯାଇଛି जे अमेरिका रे कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल बा नैदानिक परीक्षण कराजिबो। या सहित कंपनी पक्षरु कहुଯାଇଛି जे कोवैक्सीन तृतीय पर्याय परीक्षण तथ्यर अनुशीलन और संकलन चलीछि। खूब शीघ्र एहाकू प्रकाश करा गतकाली नीति आयोग सदस्य तथा सरकार टीकाकरण टास्कफोर्स अध्यक्ष डॉक्टर भिके पॉल कहिथिले जे आसंता 7 रु 8 दिन मध्य कोवैक्सीन तृतीय पर्याय परीक्षण फलाफल प्रकाश पाइबो। नंबर 22 6 मास पर जेल रु मुकुलिले गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही। दीर्घ 6 मास जेल रे रहिबा परे स्थानीय झारपड़ा जेल रु बाहरिले गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही। से विभिन्न ठकई और जालियाती मामला रे गिरफ होइथिले। अपराधिक षड्यंत्र नै प्रदीपक विरोध में अभियोग होइथिला। विभिन्न थाना रे तांकर नाँ रे 6टी मामला थिला। प्रदीप पाणिग्राही को हाईकोर्ट शर्तमूलक जमीन देइछंती। सूचनायोग्य प्रदीप पाणिग्राही सहित आईएफएस अधिकारी अभय पाठकों सहित संपर्क थिला बोली अभियोग आसीथिला। एसबु घटना पर बिजु जनता दल प्रदीप पाणिग्राही को बहिष्कार करिथिला। नंबर 23 खर्चकाट करने को कहला अर्थ मंत्रालय। महामारी जनित सांघातिक परिस्थिति रे देशर अर्थव्यवस्था तड़कू तड़ खसबार लगी दृष्टि केन्द्र अर्थ मंत्रालय 20% खर्चकाट करने को कही। ए संपर्क में समस्त मंत्रालय और विभाग गुड़ी को पत्र लिखा जाई सेमानकर अजथा और एड़ई हेबा भली खर्च कमेबा को कहुଯାଇଛି। एपरिकी 20% खर्च जेभली कमा जाई पारिबो से दिगरे पदक्षेप नेबा को अर्थ मंत्रालय कहिछि। अर्थ मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି जे 2021-22 आर्थिक वर्ष रे देशर वित्तीय नियंट परिमाण आकाशछुआ हेबा आशंका कर जाउछि। एहाकु दृष्टि रे रखी समस्त मंत्रालय और विभाग सेमानकर अजथा तथा एड़ई हेबा भली खर्च गुड़िक कमिबार आवश्यकता रहिछि। नंबर 24 गत 24 घंटा मध्य राज्य में 4,852 जन पॉजिटिव चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 4,852 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। खोर्धारू सर्वाधिक 649 जन, अनुगुळरू 275, बालेश्वररू 364, बरगड़रू 61, भद्रकरू 222, बलांगीररू 31, बौद्धरू 57, कटकरू 505, देवगढ़रू 20, ढेंकानालरू 150, गजपतिरू 48, गंजामरू 40, जगतसिंहपुररू 180, जाजपुररू 382, झारसुगुड़ारू 16, कलाहांडीरू 60, कंधमालरू 83, केन्द्रापड़ारू 287, केउंझररू 96, कोरापुटरू 88, मालकानगिरीरू 89, मयूरभंजरू 210, नवरंगपुररू 108, नयगढ़रू 136, नुआपड़ारू 22, पुरीरू 237, रायगढ़रू 105, संबलपुर 41, सोनपुररू 35 और सुंदरगढ़रू 157 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेहीपरि आउ 47 जन कोविड आक्रांतଙ୍କର मृत्यु घटिछि। नंबर 25 बुली बुली क्षमा मागुछंती टीएमसी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइथिबा अनेक नेता।
तृणमूल कांग्रेस छाड़िथिबा अनेक नेता एवं प्रत्यावर्तन पर उद्यम स्वरूप सर्वसाधारण बुली बुली क्षमा प्रार्थना करुवा लक्ष्य कर दल छाड़ा मस्त बड़ भूल थिला, एथिपाई आमको क्षमा कर किछि नेता लिखित भाव ममता को जनइबा सह निर्वाचन प्रचार भड़ी स्वतंत्र गाड़ी रे बुली बुली माइक लगे क्षमा प्रार्थना करुवा देखा जाउछि। ए संपर्कित प्रचार पत्र अर्थात लिफलेट मध्य सेमाने बांटुथिबा देखा जाउछि। निर्वाचन पूर्व परे हिंसाकांड पई बेस चर्चारे थिबा वीरभूमर विभिन्न गाँव बजार रे एभଳି गाड़ी बुलुथिबा नजर आसीछि, जहाँ बेस कौतूहल सृष्टि करिछि। कोनोसी नेता एमिति सर्वसाधारण रे क्षमा प्रार्थना करिबा एक विरल घटना बोली कुहाଯାଉଛି। नंबर 26 देश में 84,332 नुआ संक्रमित चिन्हट, मृत्यु संख्या 4,002। गत 24 घंटा मध्य देश में महामारी संक्रमण संख्या प्राय 84,000 सामान्य अधिक थिबा बेले मृत्यु संख्या 4,000 टपी जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार शनिवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 84,332 नूतन संक्रमण और 4,002 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 27 चीन को 1300 सिम कार्ड चोरा चालाण करिछि गिरफ चीन नागरिक। दक्षिण बंग सीमांतर सीमा सुरक्षा बल मालदारू गिरफ करिथिबा चीन नागरिक जनक चमकप्रद कथा प्रकाश करिछि। जाल कागजपत्र दाखल करी 1300 रु अधिक भारतीय सिम कार्ड जोगाड़ करिथिबा कथा केते घंटा धरी पचरा उचरा कराजिबा परे हान जुएई नामक से व्यक्ति जनक स्वीकार करिबा सह कहिछि जे सेगुड़िकु से तार अंतर्वासारे लुचेई रखुथिला। भारतीय अकाउंट गुड़िकु हैक करिबा एवं भारत में अन्यान्य आर्थिक ठकई करिबा लागि चोरा चालाण होइथिबा उक्त सिम कार्ड गुड़िकु परे चीन रे व्यवहार कर जाइथांता बोली से कहिछि। सूचनायोग्य गुरुवार दिन भारत सीमा भीतर को प्रवेश करुथिबा बेले जुनजोई को मालदा अंचलर भारत बंग सीमांत सुल्तानपुर गिरफ कर जाई स्थानीय पुलिस को हस्तांतर कर जाइथिला। नंबर 28 रायगढ़ में 174 मिलीमीटर वर्षा, हरिजन साहिर 60 घरे पशिला पानी। प्राक मौसुमी वर्षा बेहाल होइछि रायगढ़ सहर। 2 दिन धरी वर्षा लगी रही अध सहर जड़ानब हो पड़ी। सहरर प्रमुख ड्रेन गुड़िक पोती होइथिबा कारणरू वर्षा पानी निष्कासन होई न पारी घर भितर पशिछि। सहरर हरिजन साहि रे आंठुए उच्चरे वर्षा जल जमी रहिबा सह घर भितर पशिछि। फଳରେ साहि बसवास करुथुबा 60 लोकंक घरे पानी पशिबा जोगु बस्ती बासिंदा नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछंती। सेहिपरि सहरर आरके नगर रमाटकीज रोड मेडिकल पछपार्श्व अंचल डीपीसी ऑफिस दैनिक बजार अंचल में वर्षा पानी रास्ता पर जमी रहिबा सह लहड़ी भांगिछि। हरिजन साहि रे ड्रेन निर्माण होई नथिबारु सहरर नर्दमा वर्षा जल पूरा साहि रे जमी रहुछि। नंबर 29 इंटरनेशनल योग प्रतियोगिता रे मधुस्मिता को स्वर्ण पदक। ऑनलाइन रे आयोजित अंतर्जातिक योग प्रतियोगिता रे किट विश्वविद्यालय छात्री मधुस्मिता सेनापति स्वर्ण पदक लाभ करिबा देश पई गौरव अर्जन करिसंती। एप्रिल रे इंटरनेशनल योग ओलंपिक कमिटी पक्षरु अनुष्ठित प्रतियोगिता रे 14टी देशर 500 रु अधिक प्रतियोगी अंशग्रहण करिथिले। एथिरे मधुस्मिता भारतीय सीनियर दल पक्षरु भाग नैथिले। ऑनलाइन लाइव वीडियो रे अनुष्ठित प्रतियोगिता रे मधुस्मिता चिताकर्षक योग मुद्रा प्रदर्शन करी प्रथम स्थान अधिकार करिथिले। कटक बासिंदा गदाधर सेनापति नयन सेनापति झील मधुस्मिता 8 वर्ष धरी गुरु देवाशीष हालदर योग शिक्षा ग्रहण करुथिले। से योगरे पीजी डिप्लोमा करने सहित एबे किट विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर श्रेणीर प्रथम वर्ष छात्री। से एमएस लॉ कॉलेज रु एलएलबी मध्य करिसंती। नंबर 30 साकिब 3 मैच रु बासंद 5 लाख जरिमाना। पड़िया भितर औद्धता आचरण अंपायर को दुर्व्यवहार करने बांग्लादेश क्रिकेटर साकिब उल हसन को महंगा पड़ी। ढाका प्रीमियर लीगर 3टी मैच रु बासंद कर सेहीपरि 5 लाख बांग्ला टंकार जरिमाना लागू कर से लेवल 3 आचरण उल्लंघन करिथिबारु तांको एपरि दंड मिली। बांग्लादेशर घरोई टी20 मैच बेले साकिब स्टंप को गोईठा मारिबा सह अंपायर प्रति आपत्तिजनक शब्दर व्यवहार करथिले। यह कैमेरा रे मध्य कैद होइथिला। तेबे परवर्ती समय से निजर आचरण पई क्षमा मागिथिले, तथापि तांको डीपीएल पक्षरु दंडित कर जाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।